Praise the Lord and good morning, everybody. प्रेज द लॉर्ड, सभी को सुप्रभात। Yes, today I believe there's a word from heaven for you. और आज मेरा विश्वास है कि स्वर्ग से आपके लिए वचन आया है। As the Lord sought his Father every morning और जैसे प्रभु यीशु हर सुबह अपने स्वर्गीय पिता से मिलते थे to maintain that communication. ताकि उस वार्तालाप को बनाकर रखे, You see, this is what you are doing this morning. और आप भी आज सुबह ऐसा ही कर रहे हैं। I want you to turn with me to the book of Acts chapter 4 and verse 13. मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलें, प्रेरितों के काम 4:13। It says, now when they saw the boldness of Peter and John और वचन कहता है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत देखी and perceived that they were uneducated and untrained men, और ये जान लिया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, they marveled. और वो बहुत ही हैरान हो गए। And they realized that they had been with Jesus. और फिर वो समझ गए कि वो यीशु के साथ रहे हैं। Have you ever noticed that how close friends they begin to sound alike? और क्या आपने कभी देखा है कि दो जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो एक जैसे सुनाई देते हैं, उनकी आवाज एक समान होती है They sound like each other. और वो एक दूसरे जैसी बातचीत करते हैं। You know, a man and a woman, when they stay together for a long time, एक स्त्री और पुरुष जब बहुत समय तक एक साथ रहते हैं they pick up each other's expressions also. और चेहरे के हाव भाव भी उनके एक जैसे हो जाते हैं। They are not twins, but they function like twins. I know many of you will not agree. वो जुड़वा तो नहीं है, पर फिर भी जैसे जुड़वे लोग एक जैसे काम करते हैं, वो भी एक जैसे काम करने They लगते हैं start developing similar habits. और उनकी आदतें भी एक समान हो जाती हैं। The point is this: बात ऐसी है, spend enough time with someone, और ज्यादा समय ऐसे व्यक्ति से बिताइए and little by little their influence begins to rub off on you. और जब आप किसी के साथ बहुत समय बिताते हैं तो धीरे धीरे उनका असर आप पर पड़ता है। You begin to think like them. आप उनके समान सोचते हैं, You begin to speak like them, आप उनकी तरह बातचीत करते and हैं even your behavior becomes somewhat like them. और आपका बर्ताव भी उनके समान हो जाता है। The principle that I'm teaching you today और जो नियम या कायदा मैं आपको सिखा रहा हूँ is you become like those you spend time with. कि जिसके साथ आप संगति रखते हैं उनके समान आप बन जाते The हैं। religious leaders, they questioned Peter and John, and they expected to see frightened fishermen. और धार्मिक जो अगुवे हैं उन्होंने यूहन्ना और पतरस से सवाल पूछा और उन्होंने अपेक्षा की कि एक डरे हुए मछुआरों की तरह वो जवाब देंगे, But they encountered people with remarkable confidence and wisdom. पर उन्होंने ऐसे लोगों से बात की जिनके अंदर आत्मविश्वास था और बहुत ज्यादा साहस और हिम्मत थी। They had not formal theological education. और थियोलॉजी की पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की थी। They had not attended some elite Harvard school, some business school, from some famous teachers. No. और प्रसिद्ध टीचर्स से या बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में जाके उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की थी। And finally they concluded और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे, they had been with Jesus. ये लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो यीशु के साथ रहे हैं। Jesus had so transformed their character, had so transformed them that it was now visible in them. और यीशु ने इस कदर उनमें परिवर्तन लाया था कि वो परिवर्तित रूप उनमें से अब दिख के आ रहा था। Praise the Lord. Praise the Lord. Go with me to the book of Proverbs chapter 13 and verse 20, and I'm reading from the New Living Translation. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रहा हूँ, नीति वचन 13:20। It says, walk with the wise and you will become wise. और वचन कहता है कि बुद्धिमान के साथ चलो तो तुम भी बुद्धिमान बनोगे, Associate yourself with fools and you will get into trouble. पर अगर तुम मूर्खों के साथ रहोगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। Now notice over it says Proverbs doesn't merely say that wise friends give good advice or wise advice. और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जो बुद्धिमान दोस्त हैं वो बुद्धिमान सुझाव देते हैं। It says when you walk with them, और वचन कहता है कि जब तुम उनके साथ चलते हो, उनके the साथ wise संगति रखते हो, change you. तो वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो आपको बदल देते हैं। Here's the takeaway. Influence is contagious. और सीखने की बात ये है कि संग का रंग पड़ता है। क्या बात है, संग का रंग पड़ता है। Character is often caught before it is taught. इसके पहले कि चरित्र और बर्ताव आपको सिखाया जाए, ये हम देख देख कर सीखते हैं। There was a great man of God who was invited to a perfume company to pray.
और एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर का दास था जिसे परफ्यूम कंपनी में बुलाया था प्रार्थना के He लिए। was a simple man. वो बहुत ही साधारण व्यक्ति He used to था work in a bank. और वो एक बैंक में नौकरी करते And थे। one day they took him to that company. और एक दिन वो उसे उस कंपनी में लेकर गए And they took him around in the company. और कंपनी पे वो टहल रहे थे And he was praying in every area of the company. और उस कंपनी के हर भाग में, हर इलाके में जाके वो प्रार्थना कर रहे थे। After prayer, प्रार्थना के he बाद reached home. वो घर पहुंचे And his wife said, और उनकी पत्नी ने पूछा, why have you sprayed such costly perfume? और इतनी महंगी परफ्यूम्स तुमने क्यों लगाई है, Why have you purchased it? तुमने क्यों खरीदा है? He said, और उन्होंने I कहा have not brought the perfume. I visited the perfume company. और उन्होंने कहा कि वो परफ्यूम मैंने खरीदी नहीं है, पर उस परफ्यूम कंपनी में मैं गया था। That man of God was Uncle D.J. Dinakaran. और वो जो परमेश्वर का जन का नाम है वो है अंकल डीजे दिनकरन। He had visited a perfume company. और वो एक परफ्यूम कंपनी में गए थे। So what atmosphere, what surroundings you are in, it will rub off on you. और जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का असर आप पर पड़ता ही है। Spend time with people who complain and that complaining will rub off on you. अगर शिकायत करने वालों के साथ आप रहेंगे तो वो शिकायत का बुरा असर आप पर भी पड़ेगा। If you connect yourself with people who honor God's word, their passion is for souls, quietly it will rub off on you. अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रभु का वचन का आदर सम्मान करते हैं, वो लोगों को जीतने की जिज्ञासा रखते हैं, तो वही असर धीरे धीरे आप पर भी पड़ेगा। That's why you must read the right books. और इसलिए जरूरी है कि हम सही किताबें पढ़ें। You must connect with the right videos. आपको सही वीडियोस देखनी है And that anointing will rub off on you. और वही अभिषेक आप पर भी आएगा। So you see, there is a influence greater than all these influences, and that influence I want to talk to you today is spending time with Jesus in His presence. सभी प्रभाव से बढ़कर जो प्रभाव है और जो असरदार प्रभाव है वो है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना। The disciples were ordinary people, और चेले बहुत ही साधारण लोग थे, but they saw Jesus, और उन्होंने यीशु को देखा how He prayed, कि कैसे यीशु प्रार्थना करते how He performed miracles, और कैसे यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म how करते He gave His teachings, what examples He used. और अपनी शिक्षाओं में किस तरीके से के उदाहरण और मिसाल यीशु And देते थे। even after Jesus ascended to heaven, और जब यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए उसके बाद भी His life continued to shine through them. और यीशु का जो जीवन है अपने चेलों के द्वारा चमकने लगा। Today, the same invitation is for you as well. आज वही आमंत्रण आपके लिए भी है। Time you spend in prayer is never wasted, it's invested. जितना समय आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताते हैं वो कभी बर्बाद किया हुआ समय नहीं है, आपने सही बात में निवेश किया है। In meditating God's word, जब आप प्रभु के वचन को मनन करने में समय बिताते हैं, reading God's word वचन पढ़ने में समय बिताते will हैं, never go unproductive. वो वचन कभी बर्बाद नहीं हो, वो समय कभी बर्बाद नहीं होगा। Somehow leaves a mark on your spirit man. कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसकी छाप आपके आत्मिक मनुष्य पे पड़ेगी। You may not notice it immediately, हो सकता है कि आप उसे तुरंत ही ना देखें, but slowly but surely it will rub off on you. पर धीरे धीरे आप वो अभिषेक को, उस असर को आपके जीवन में आते Your देखेंगे life will begin to reflect Christ. और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करेगा। So today you must ask yourself, और इसीलिए आपको खुद से ये सवाल पूछना है, if people observe my life, अगर लोग मेरे जीवन को आज देखें what conclusion would they arrive at? तो मेरे जीवन को देखकर वो किस नतीजे पर Whom am I पहुंचेंगे? spending time with? मैं किसके साथ समय बिता रहा हूँ? Maybe the compliment would be, you have been with Jesus. हो सकता है कि बदले में जवाब आए कि आपके जीवन को देखकर लगता है कि आप यीशु के साथ थे। Hallelujah. Hallelujah. And that day will be a great compliment. और वो बहुत ही बड़ी सराहना होगी। Let me pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना Let's lift चाहता our हूँ। hands. आइए हाथों को उठाएं। Father, this morning, अब्बा पिता, आज सुबह we lift our hands to you मैं अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाते हैं and ask you for this grace और आपसे पूछना चाहते हैं इस कृपा to के लिए spend time in your presence. कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में समय बिताऊं। Lord, we want to walk with you. प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता We हूँ, want to talk with you. आपसे बातें करना चाहता हूँ। Lord, speak to प्रभु us. आप मुझसे बात कीजिए, Speak to us. हमसे बात कीजिए Let that प्रभु। grace, let the perfume of your presence just come upon everyone that is connected today. आपकी जो उपस्थिति का इत्र है प्रभु वो हम सभी पर छिड़का जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the blessed name of Jesus. यीशु के धन्य नाम Lift में। your hands and begin to pray. अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना Lord, कीजिए। connect me with the right people. प्रभु मुझे सही लोगों के साथ I जोड़िए, want to be connected with the right मैं people. सही लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। Bring the right people around me. oh सही God. लोगों को मेरे आसपास लाइए प्रभु। Blessed be your name. आपका नाम धन्य हो That प्रभु। iron, Lord, sharpens iron, your word लोहा says. लोहे को तेज करता है। Lord, I want to be sharpened.
और मैं प्रभु तेज होना I चाहता want to हूँ be used as a harvest instrument in this end time. और फसल के हथियार के समान मैं चाहता हूँ आप मेरा इस्तेमाल Connect अंतिम me, दिनों में Lord. करें। प्रभु मुझे जोड़ Connect लीजिए, my family members मेरे परिवार के लोगों को with the जोड़िए right प्रभु, people. सही लोगों के साथ। And may I be a blessing और प्रभु मैं एक आशीष बनूं wherever I go. जहाँ पे भी मैं जाऊं, In the name of Jesus. यीशु के नाम Let में। Jesus be reflected through me. और प्रभु मेरे द्वारा Lift यीशु your hands and begin जाहिर to हो। pray. अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। शादाराबासी के That रिबियान anointing तरमा। is coming on you. वो अभिषेक आप पर उतर रहा है। संदाराबासी के वीरमामांतरी नमा। The fire is coming on you. और वो अग्नि आप पर उतर Yes, रही the है। Lord will melt you and mold you. और प्रभु आपको पिघलाकर आपको In आकार देगा Jesus' name. यीशु के नाम And में। from today onwards, और आज से people will say, लोग कहेंगे you have changed. कि आप बदल गए You हैं, have been with Jesus. आप यीशु के साथ रहे हैं। God bless you. प्रभु आपको I want आशीर्वादित you करे। to please introduce this with other people. मैं चाहता हूँ कि ये मॉर्निंग डिवोशन का परिचय आप दूसरों के साथ करें। And I'll tell you, your reward will be great. और मैं कहना चाहता हूँ आपका प्रतिफल बड़ा होगा। Join as a family. और एक परिवार होने के नाते I आप want जमा more होइए। and more people. I want 1,000 people every morning praying. मैं चाहता हूँ कि 1000 लोग हर सुबह मिलकर प्रार्थना करें। This is my vision. ये मेरा दर्शन है। I pray to God प्रभु से प्रार्थना that you करता will हूँ join me in this vision. कि आप इस दर्शन में मेरे साथ रहेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित करे। Shalom, shalom. शलोम शलोम।